So good morning, all of you. Now, in the earlier lecture, we had talked about the various input-output configurations that we see in the measurement systems, and we had seen the various types of inputs that are possible whenever we are working with a measurement system. तो हमने उसमें देखा था that we have a desired input, that means the input that we actually want to measure, and along with that, we had two unwanted inputs. There were two categories of inputs which were actually unwanted. Okay, so that was interfering input as well as modifying input. उसमें हमने देखा था that interfering input is something which unintentionally your sensor picks it up. जैसे आपका सेंसर भी वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है in correspondence to some signal, but at the same time from some nearby instrument it is also picking up some voltage which is not corresponding to your measurement. So that is interfering. If there is a change in very drastic change in the ambient temperature and the properties of your sensor, they change, because of which your calculating formulas, they are changing likewise. So that becomes a modifying input. This we had discussed in detail in the earlier lecture. Now the point is, when we know that there are certain unwanted signals or unwanted inputs which get incorporated into our system, then how do we get the correct measurement? Okay, so today's lecture is going to be about the methods for the correction of interfering and modifying inputs. Of course, first and foremost thing is, all these are applicable in those scenarios where we know that what kind of an interfering or a modifying input is expected to come in the system. So if we know that what kind of inputs are coming into the system, then we can always have some correction method with the help of which we can actually rectify the output, and we can eliminate this we can eliminate the interfering and the modifying inputs from our system. Okay. Modifying input, yes, of course, modifying input is undesirable, because whenever you are designing a system, you actually take into account certain specific conditions. Okay. For example, if you are having some input and then you apply some formula to that and you calculate the corresponding output. Now that formula is applicable maybe for a particular range of temperature. ठीक है, उसमें आपने कुछ कांस्टेंट्स यूज किए होंगे, जैसे स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होता है and things like that. Okay, now that is actually applicable only for a particular range of temperature. As soon as your ambient temperature or your system temperature goes beyond that, your formula will change. Now if your formula changes, first and foremost thing is that the system that you have built, that has to be changed. पहले सपोज आप कहीं वोल्टेज को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दैट मींस द सिस्टम दैट यू हैव बिल्ट, दैट नीड्स टू हैव अ चेंज. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, इफ दैट सिस्टम इज कंप्लीटली हार्डवेयर बेस्ड, ओके, तो जहां पर आपने कोई एम्पलीफायर लगाया था, कोई मल्टीप्लायर आपने सर्किट की हेल्प से डिजाइन किया था, जिसमें कि वोल्टेज पहले 2 से डिवाइड हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रही थी, अब आपको पूरा सर्किट चेंज करना पड़ेगा सच दैट इट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 5. Okay, so this is an unwanted thing. We don't want this to happen, because your circuit, that means the original circuit that you have made, that doesn't work. And even if you are working with microcontrollers, if you are working with programming languages, then somewhere in the program you have to go and change that value. Where earlier your formula was multiplied by 2, now you have to change that value to get it multiplied by 5. Okay, so that means that is undesirable. You don't want to do that, because your system, you cannot again and again go on changing those values. Then your system is not going to work properly. So that is why modifying input is also an undesirable effect, which we do not want to have in our system. Okay, so let us talk about the methods. This is a very simple lecture. So the method of correction for interfering and modifying input. Okay, so this was probably some interference in between. Now, this is a very simple lecture, and we are going to have, there are 3-4 methods, very simple methods that we are going to talk about. So methods for correction for interfering and modifying inputs. The first one is method of inherent sensitivity.
नाउ इनहेरेंट सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि जिस समय हमने सेंसर को डिजाइन किया था, डिजाइन करने का मतलब जब हमने उसको फैब्रिकेट किया, जब हमने उसका मटेरियल लिया, उसको हमने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर जब उसको फैब्रिकेट किया था, तब हमने उसको कुछ ऐसे फैब्रिकेट किया, जो मटेरियल हमने सेलेक्ट किया, जो उसकी शेप हमने बनाई, वो कुछ इस तरह से बनाई दैट द सिस्टम, द सेंसर शुड बी सेंसिटिव ओनली टुवर्ड्स द डिजायर्ड इनपुट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पता है कि जहां पर हमें ये सेंसर लगाना है वहां पर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत हो सकता है, ठीक है, तो हम ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्ट्रेन गेज बना रहे हैं तो हम स्ट्रेन गेज को बनाने के लिए एक ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करेंगे विच हैज अ वेरी लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि टेम्परेचर चेंज के साथ उसमें रेजिस्टेंस में चेंजेस नहीं आने चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर अगर बार बार चेंज हो रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे सेंसर की रेजिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स योर सेंसर शुड नॉट बी सेंसिटिव टुवर्ड्स टेम्परेचर वेरिएशंस। ठीक है, सो मीनिंग टू से अगर हमें ये बात पता है कि हमारा जो सेंसर है वो एक ऐसे फील्ड में यूज होने वाला है जहां पर टेम्परेचर सेंसिटिविटी है, दैट मीन्स टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होने वाले हैं, तो उस फील्ड में लगाने के लिए हम सेंसर को फैब्रिकेट ही कुछ इस तरह से करते हैं कि हमारा जो मटेरियल है, जो डिजाइन है, उसकी वजह से जो स्ट्रेन गेज की जो उस सेंसर की रेजिस्टेंस है दैट बिकम्स इनसेंसिटिव टुवर्ड्स टेम्परेचर वेरिएशंस। दैट इज कॉल्ड इनहेरेंट सेंसिटिविटी। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम जो सेंसर को फैब्रिकेट करते हैं, जब डिजाइन करते हैं, उसी टाइम पे हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसको फैब्रिकेट ही इस तरह से किया जाए दैट द सिस्टम, द सेंसर इज सेंसिटिव ओनली टुवर्ड्स द डिजायर्ड इनपुट, नॉट टुवर्ड्स एनी interfering or any modifying input. Okay, this can be specifically used for modifying inputs कि अगर आपको मॉडिफाइंग इनपुट जैसे कि टेम्परेचर है या प्रेशर है, तो आप सिस्टम का मटेरियल, सेंसर का मटेरियल, सिस्टम सेंसर का ज्योमेट्री, उसका डिजाइन कुछ ऐसा फैब्रिकेट करोगे कि वो उस टेम्परेचर वेरिएशंस के प्रति इनसेंसिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स you are providing an inherent insensitivity to your sensor towards unwanted inputs. तो इस केस में बहुत ही स्पेसिफिकली सेंसर्स डिजाइन किए जाते हैं। जैसे आप नॉर्मली अगर स्ट्रेन गेज लेने जाओगे तो यू माइट फाइंड अ स्ट्रेन गेज ऑफ सम अदर मटेरियल, बट अगर आप एक्चुअली में इंडस्ट्री में यूज करने के लिए if there is some specific requirement, you can always get a strain gauge fabricated with a different material which will suit the site of your plant. Okay, so that becomes a method of inherent sensitivity. This is mostly used for modifying inputs. Okay, interfering ke liye we have other methods coming in between. Okay, so now then another method is high gain feedback. Okay, now what is high gain feedback? On your screen you can see two types of systems. One is an open loop system and one is a closed loop system. Now open loop system में क्या होता है, एक हमारे पास प्रोसेस है, प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, कोई बॉयलर प्लांट हो सकता है, कोई सर्किट हो सकता है, उसके पीछे हमने एक कंट्रोलर लगाया हुआ है। कंट्रोलर को आप ऐसे समझो दैट देयर इज सम डिसीजन मेकिंग डिवाइस। जैसे आप लोग आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हो तो ये फजी लॉजिक कंट्रोलर हो सकता है, न्यूरल नेटवर्क कंट्रोलर हो सकता है, आपको माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है, आर्डिनो हो सकता है जिसमें आपने कुछ लॉजिक फीड किया है दैट इफ माय इनपुट इज दिस देन ड्राइव मोटर 1, इफ माय इनपुट इज दिस ड्राइव मोटर नंबर 2, लाइक दैट। So controller can be some decision making device. Okay, now जहां पर आपके पास कोई फीडबैक लूप नहीं है, यानी कि इनपुट दिया आपने कंट्रोलर को, कंट्रोलर ने प्रोसेस प्लांट को ड्राइव किया और कुछ आउटपुट आपको मिल गया, दिस इज एन ओपन लूप सिस्टम। एंड जहां पर हम कंटिन्यूअसली आउटपुट को मॉनिटर करते हैं एक फीडबैक के फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इनपुट दिया कंट्रोलर को सम एक्स, कंट्रोलर डिसाइड्स दैट मोटर 1 शुड मूव। हमने क्या किया, हमने एक सेंसर लगा दिया विच इज गोइंग टू टेस्ट डज मोटर 1 मूव और नॉट।
वो हर टाइम पर आउटपुट में जो भी हमारे पास सिग्नल आ रहा है उसको मेजर करके इट इज गोइंग टू गिव अ फीडबैक, जहां पर हम उसको रिक्वायर्ड इनपुट से कंपेयर करके देख सकते हैं। हमारा इनपुट था दैट द मोटर 1 शुड मूव, हमने आउटपुट पर एक सेंसर लगा दिया जो ये मॉनिटर करेगा डज मोटर 1 मूव और नॉट, एंड इट इज गोइंग टू गिव मी अ सिग्नल इन फीडबैक। उसे मैं अपने इनपुट सिग्नल के साथ में कंपेयर करूंगी। मेरा इनपुट था मूव मोटर 1 और फीडबैक मुझे मिला दैट मोटर 1 इज ऑलरेडी मूविंग या इट हैज स्टार्टेड मूविंग। दैट मीन्स यस माय वर्क इज डन, जो मैं एक्चुएट करना चाहती थी वो पर्टिकुलर मोटर एक्चुएट हो गई है। इफ आई गेट अ सिग्नल नो motor 1 is not moving, that means probably the voltage that I am supplying is still not sufficient to drive that motor, I should increase that voltage। that your controller will decide कि अगर मोटर 1 अभी भी मूव करना स्टार्ट नहीं हुआ है तो मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज अ फीडबैक लूप। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अगर हम फीडबैक एलिमेंट में एक हाई गेन एलिमेंट लगा देते हैं, नाउ गेन ओवर हियर मींस अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सो अगर हम फीडबैक वाला जो ये लूप है इसमें अगर हम एक हाई गेन एलिमेंट लगाते हैं, यानी कि एक हाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा देते हैं, उससे हमें मॉडिफाइंग और इंटरफियरिंग इनपुट दोनों के केस में you get a very good insensitivity towards that। Now how do we get that? I will show it to you। Okay, so we have a query, what is the work of error detector, and please explain the closed loop। So let's go back to again to this closed loop। Now over here open loop and closed loop are two different configurations for any automated system। ठीक है, ओपन लूप में क्या होता है, वी डू नॉट गेट एनी फीडबैक फ्रॉम द आउटपुट। हमने इनपुट दिया सपोज ड्राइव मोटर 1, कंट्रोलर ने क्या किया, कंट्रोलर डिसाइड करेगा अगर मुझे मोटर 1 ड्राइव करना है मुझे कितना वोल्टेज सिस्टम को देना चाहिए सच दैट मोटर 1 विल स्टार्ट ड्राइविंग। सो कंट्रोलर, व्हाट अ कंट्रोलर विल डू, इट विल गिव एन एक्चुएटिंग सिग्नल यानी कि इनिशिएटिंग सिग्नल ऑफ द रिक्वायर्ड वोल्टेज टू माय प्रोसेस so that motor 1 starts moving। okay, and we have some output, but now we do not have any process to compare कि जो हमने इनपुट में कमांड दिया था आउटपुट पे क्या वही कमांड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। we have no method of having a automatic comparison। हमने इनपुट दे दिया, कंट्रोलर ने कमांड दे दिया, प्रोसेस इनिशिएट हो गया, बट वी डोंट नो वेदर द रिक्वायर्ड प्रोसेस इज एक्चुअली इनिशिएटेड और नॉट। ये इस केस में क्या होगा, मैनुअली सम ऑपरेटर हैज टू चेक if motor 1 has started moving or has it not started moving। वहीं पर जब हम उसको क्लोज लूप में कर देते हैं तो क्लोज लूप में क्या होता है, हम एक सेंसर लगाएंगे आउटपुट पे which is continuously going to check does motor 1 start moving or not। if yes, then what will happen, my this input and feedback signal इनको माइनस जब हम करेंगे it will give me a zero signal। now zero signal will indicate to the controller कि जो voltage मैंने plant को provide की थी that was sufficient to drive the motor, do not give more, motor 1 has already started moving। okay, if it says no, motor 1 does not move, then when you subtract these two you will get some error signal। इसका मतलब ये हुआ कि जो कमांड हमने दिया था और जो आउटपुट पे हमें मिला वो सेम नहीं है। then controller will decide should I give a higher voltage signal to drive the motor? yes। so what controller will do, it will give a higher voltage signal to the plant to start driving that motor। तो feedback closed loop में क्या होता है, हम continuously output को measure करते हैं with the help of some sensor and we keep comparing it with the command that we had actually given। so error detector का काम होता है in general, ये सारा क्योंकि electric circuits होते हैं तो ये सब voltages हैं, हमने जो इनपुट दिया दैट इज आल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू सम वोल्टेज, जो यहां से आउटपुट आप मेजर करोगे दैट इज आल्सो सम वोल्टेज, एंड एरर डिटेक्टर इज बेसिकली अ सबट्रैक्टर जो इन दोनों वोल्टेजेस को माइनस करके एक एरर सिग्नल जनरेट कर देता है। ओके, बट टू अंडरस्टैंड इट इन अ लेमैन लैंग्वेज यू कैन से दैट हमने कुछ कमांड दिया सिस्टम को जो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और फीडबैक में हमारे पास एक सिग्नल आएगा जो हमें ये बताएगा कि वो कमांड एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है। और जब आप इन दो सिग्नल्स को आपस में माइनस करोगे तो एक एरर सिग्नल जनरेट होता है। अगर एरर सिग्नल 0 हो जाता है इसका मतलब जो कमांड हमने दिया और जो आउटपुट जनरेट हुआ दोनों सेम है,
दैट मीन्स द प्रोसेस इज सक्सेसफुली वर्किंग। अगर दोनों सेम नहीं है, यानी एरर सिग्नल 0 नहीं आता है, इसका मतलब हमारा आउटपुट अभी भी रिक्वायर्ड पॉइंट पर नहीं पहुंचा है, जो कमांड हमने दिया था वो 100% एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ओके, सो दैट एरर सिग्नल जो कंट्रोलर होता है, उसमें हम उस एरर सिग्नल के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने जो भी एल्गोरिथम, जो कंट्रोलर, जो फॉर्मूला फीड किया होता है, वो उस एरर सिग्नल के बेस पे ये डिसाइड करता है कि मुझे प्लांट में क्या सिग्नल भेजना है। मुझे वोल्टेज इंक्रीज करनी चाहिए, मुझे वोल्टेज डिक्रीज करनी चाहिए, या मुझे वो ऑल्टरनेटिंग करंट देना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, सो दैट मेरा जो आउटपुट है वो इनपुट कमांड को मैच कर जाए। और ये कंट्रोलर तब तक सिग्नल देता रहेगा जब तक कि ये एरर सिग्नल जो है 0 नहीं हो जाता। 0 जब हो जाता है तो कंट्रोलर को पता चल गया, नाउ आई शुड बिकम स्टेडी, कि अब मैं जो सिग्नल प्लांट को दे रहा हूं दैट इज सफिशिएंट, I am getting the required output. Now it will come, it will hold that steady position. Okay, that is how the closed loop works actually. So Pratham and Nihal, are your doubts clear now? Okay, so let's move to the next. Now, what we were talking about is that when we have a high gain feedback element, यानी कि जब हम ये फीडबैक बनाते हैं, इसमें जो भी एलिमेंट्स लगे होते हैं वो हम कुछ इस तरह से डिजाइन करते हैं दैट दे गिव अ हाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यहां पर गेन का मतलब होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर इन योर पर्टिकुलर प्रोसेस। सपोज मैंने फीडबैक में कोई गेन लगाया विच इज 5, इसका मतलब ये है कि जब भी मैं आउटपुट को मेजर करूंगी वो सिग्नल 5 से मल्टीप्लाई होकर एरर डिटेक्टर में जाएगा। सो गेन का मतलब होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू सी इज इन दोनों कॉन्फ़िगरेशंस में अभी आई एम गोइंग टू शो यू दैट ये जो क्लोज लूप वाला कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो क्लोज लूप वाला कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज वेरी रोबस्ट towards interfering as well as modifying input, while the open loop system is not robust towards the interfering and the modifying inputs. Let us see how. Now when you see this open loop configuration, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन, अब देखो हमारे पास कोई एक सिस्टम था जिसमें सपोज एक मोटर लगी हुई है और एक स्प्रिंग लगा हुआ है, उसको हमने कुछ वोल्टेज दिया, वोल्टेज से मोटर स्टार्ट होगी, वो स्प्रिंग को चलाएगी और कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास कुछ डिस्प्लेसमेंट आई। This is suppose some hypothetical example I am taking. Now motor and spring are the two hardwares जहां पर modifying या interfering input can actually come into picture. ठीक है, now when I calculate the output for this particular open loop system, अभी ये जो दो devices लगे हुए हैं इनका जो gain है that is suppose Km and Ks. ठीक है, so now again what I told you that gain is actually a multiplying factor. ये जो configuration आप देख रहे हो इसका mathematically मतलब ये होता है कि voltage EI is being multiplied by Km then multiplied by Ks and that is being obtained at the output X naught. ठीक है, so इस particular configuration के लिए the output X naught is equal to Km multiplied by Ks multiplied by EI. That means whatever input I am giving to the system is being directly multiplied by the two constant values Km and Ks, जो भी हमारे दोनों हार्डवेयर सिस्टम के गेन थे. Okay, now suppose it so happens that there is some modifying input or some interfering input जिसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल हमने जो इनपुट वोल्टेज दिया था उसके साथ हमारी मोटर ने कोई एडिशनल वोल्टेज भी पिक कर लिया और उससे क्या हुआ, उसका टॉर्क चेंज हो गया. ठीक है, और देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी दैट देयर इज अ मॉडिफाइंग इनपुट, यानी कि सपोज एम्बिएंट टेम्परेचर चेंज होने से हमारे स्प्रिंग के कांस्टेंट में कुछ चेंज आ गया, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी में चेंज आ गया, उसकी इलास्टिसिटी में चेंज आ गया, यानी कि इंटरफियरिंग और मॉडिफाइंग इनपुट की वजह से Km और Ks में सपोज कुछ एरर इंट्रोड्यूस हो गया. तो अब आप इसको, इस फॉर्मूला को अगर आप ध्यान से देखोगे कि X नॉट यानी कि आउटपुट इज Km इंटू Ks मल्टीप्लाइड बाय द इनपुट. अगर ये Km और Ks किसी वजह से चेंज हो जाते हैं, चाहे वो इंक्रीज होंगे
या डिक्रीज होंगे, वो कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज आउटपुट में भी रिफ्लेक्ट होगा। जैसे Km जो है वो सपोज पहले 5 था और बाद में वो 10 हो गया, ठीक है, तो पहले हम इनपुट को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, हमें आउटपुट मिल रहा था, बाद में क्या हुआ, वो 10 से मल्टीप्लाई होके हमें आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब जो भी इंटरफेरेंस इसके बीच में आई थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट फॉर्म में हमारे आउटपुट को भी इफेक्ट कर रही है। इसका मतलब जो इंटरफेरेंस इनकॉर्पोरेट हुई मोटर में वो सेम प्रोपोर्शन में आगे प्रोपोगेट हो गई और हमारे आउटपुट पर भी उसका इफेक्ट हमें दिख रहा है इन सेम प्रोपोर्शन। यानी कि पहले अगर हमारा एक्स नॉट जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होके मिल रहा था, अब एक्स नॉट 10 से मल्टीप्लाई होके मिल रहा है, ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो एक मोटर के अंदर इंटरफियरिंग या मॉडिफाइंग इंटरफेरेंस आने की वजह से मेरा पूरा का पूरा आउटपुट जो है वो डबल हो गया है। ओके, सो दैट मीन्स सेम कैन बी विद द स्प्रिंग ऑल्सो। अगर दोनों में इंटरफेरेंस आ गई है तो मेरा आउटपुट जो है वो कितना मैग्नीफाई हो जाएगा, अनवांटेडली मैग्नीफाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में दोनों पर्टिकुलर जो हमारे डिवाइसेस लगे हुए हैं उसमें जो भी इंटरफेरेंस आएगी वो सेम आगे प्रोपोर्शन में कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है, प्रोपोगेट हो जाएगी। अब सेम चीज अगर हम क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में करते हैं, क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में अब सपोज हमारे पास एक ये सिस्टम बना हुआ है, उसमें एक एम्पलीफायर है, एक मोटर है, एक स्प्रिंग है और एक फीडबैक सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास फॉर्मूला जो आएगा, देखो मैंने आई हैव पुट पर्पसली माय हैंड रिटन डेरिवेशन ओवर हियर सो दैट इट बिकम्स क्लियर टू यू दैट हाउ वी गेट दिस फॉर्मूला। पीछे जब हमने ओपन लूप किया तो आउटपुट था Km into Ks into input EI. Whereas when we take it into the closed loop, the formula becomes EI multiplied by Ka into Km into Ks divided by 1 plus Kf, Km, Ka and Ks. ठीक है, so formula changes. This is the derivation. इसको आप बाद में देख सकते हो how we are getting this particular formula. But now the formula of output has changed. ठीक है, अब आप इस फॉर्मूला को अगर ध्यान से देखोगे तो इस केस में बेसिकली क्या होता है, यूजुअली अगर आप इसका डिनोमिनेटर देखोगे Kf, Ka, Km and Ks, we are saying that we are using a high gain feedback. इसका मतलब जो एलिमेंट हमने फीडबैक में लगाया था उसका गेन बहुत हाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि Kf जो है उसकी वैल्यू बहुत हाई है। अगर ये वैल्यू बहुत हाई होती है, इन दैट केस व्हाट वी कैन डू इज वी कैन नेग्लेक्ट वन becomes negligible as compared to this product value Kf, Ka, Km, Ks. Okay, once again I am telling you we have a closed loop system over here. When you derive the formula for a closed loop system, the formula for output is Ei multiplied by Ka into Km into Ks. That means all the forward gains, जो भी फॉरवर्ड पाथ में हमारे डिवाइसेस लगे हैं उनका गेन, डिवाइडेड बाय 1 प्लस द कंप्लीट लूप गेन। कंप्लीट लूप गेन का मतलब फॉरवर्ड और बैक फीडबैक में जितने भी डिवाइसेस लगे हैं सबके गेन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज Kf into Ka into Km into Ks. Now as the method says that this is a high feedback system, हमने फीडबैक वाला जो डिवाइस लगाया हुआ है वो कुछ ऐसा डिवाइस लगाया है जिसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बहुत हाई है, दैट मींस Kf इज अ वेरी हाई वैल्यू। ओके, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर को अगर आप देखोगे दिस प्रोडक्ट बिकम्स वेरी हाई एज कंपेयर टू 1 एंड सो वी कैन एक्चुअली नेग्लेक्ट 1। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ये क्या बन जाएगा, Ei multiplied by Ka, Km, Ks divided by Kf, Ka, Km into Ks. Once again I am repeating, since we have a high feedback element attached over here, Kf is a very high value, because of which this complete product of the gain becomes very high and we can neglect 1 because it is a value very high as compared to 1. So this formula gets modified to x naught is equal to Ei multiplied by Km into Ka into Ks divided by Kf
into KA into KM into KS. ठीक है. Now what we can do is all these three KA, KM, KS, they can get cancelled out and you get the formula as X naught is equal to EI multiplied by 1 upon KF. ठीक है. So this formula gets reduced to only one parameter, that is feedback gain. तो इस केस में क्या होगा, अगर आपके फॉरवर्ड एलिमेंट्स जो भी लगे हुए थे यानी कि एम्पलीफायर, मोटर, स्प्रिंग, अगर इसमें कोई इंटरफेरेंस आ भी रही है, इट डज नॉट अफेक्ट द आउटपुट, बिकॉज जब हम हाई गेन लगा देते हैं फीडबैक में तो हमारा जो फॉर्मूला है इट गेट्स मॉडिफाइड टू एक्स नॉट इज इक्वल टू ई आई मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन के एफ. KF इज द फीडबैक गेन, यानी कि हमारे आउटपुट में फॉरवर्ड में जो भी एलिमेंट्स लगे थे उनका गेन गेट्स एलिमिनेटेड. नाउ माय आउटपुट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन KM, KA एंड KS. तो अगर मेरे इन फॉरवर्ड एलिमेंट्स में किसी भी तरह का इंटरफेयरिंग या मॉडिफाइंग इनपुट आता है, इट विल नॉट अफेक्ट माय आउटपुट एट ऑल. ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ हाई फीडबैक or high gain feedback method, which gives you a very robustness towards interfering as well as the modifying inputs in the output. Okay, there is a query. In closed loop, there is an error signal we have assumed. See, error signal we are assuming, error signal will always be there. Whatever we are getting by subtracting these two, the command that we have given and the output that we are getting, whenever you subtract these two, जो भी signal हमें मिलेगा उसे हम error signal बोलते हैं. Now this error could be 0. अगर हमारा output input command को exactly match कर गया है तो error 0 हो जाता है. Getting a 0 in the error signal actually indicates we have achieved the required output. Okay, but if there is no error, there is some value other than 0, इसका मतलब अभी हम required output पर नहीं पहुंचे हैं and we need to change the signal that we are giving to the plant so that we reach the required output. So error signal will always be there in the closed loop system. उसकी value 0 भी हो सकती है, उसकी value non-zero भी हो सकती है. 0 or non-zero value will always tell us whether we have reached the required output or not. Okay, so we have another query. How does it help with interfering input and how we have derived the closed loop formula? First thing is, for your closed loop formula, here I have mentioned the derivation. You can just go through this. Okay, there's a very simple two-line derivation is there. You will get this formula once you follow these 2-3 steps. Okay, then when we are talking of the interferences, see, any factor that is, getting multiplied by these amplifier, motor and spring gains, even if you are getting some interfering signal or you are getting some modified signal, anything that is getting multiplied by these gains is actually not appearing in my output. Okay, so क्योंकि हमारा जो formula है that gets reduced to X naught is equal to EI multiplied by 1 upon KF. Now इसमें सिर्फ वही interfering input आएगा जो output पे कहीं पर pick हो रहा होगा. Okay, some wires or some output device might pick up something. See, remember, we are not saying that this is completely free of undesired inputs. No, but it is independent of the undesired inputs coming into picture because of these forward elements. Feedback में अगर कुछ होगा, that will definitely come. Okay, so but we have reduced the interfering inputs and the modifying inputs. पहले पूरे सिस्टम में 4 डिवाइसेस लगे हुए हैं. इन चारों डिवाइसेस में से हमारे सिस्टम के आउटपुट में सिर्फ वही इंटरफेरेंस या मॉडिफाइंग इनपुट आएगा जो फीडबैक डिवाइस से रिलेटेड होगा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला बन के आ रहा है वो फॉरवर्ड डिवाइसेस पे डिपेंडेंट नहीं है. Okay, so that is why if modifying or interfering inputs are coming into picture, they do not actually affect the output. But again, I'm saying it does not mean that there is absolutely no disturbance in the system. Okay, but not a major disturbance coming from these forward devices, right? So that is the basically importance of having a high feedback gain, that जो हमारे forward devices थे उनके अंदर जो disturbance आ रही थी उसके
towards that we have now become robust enough. Okay. So this part is explained in this slide. You can, like I had told you, that the output is now 1 upon kf into ei. Okay, when this value becomes very large, you can actually neglect 1 and you get a modified formula for the output. Then we have a method for calculated output correction. Now calculated output correction का मतलब होता है कि अगर हमें इंटरफियरिंग या मॉडिफाइंग इनपुट की एग्जैक्ट वैल्यू पता है, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये मालूम है दैट द मॉडिफाइंग इनपुट इज चेंजिंग फ्रॉम द कांस्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम 2 to 5. पहले हमारा फॉर्मूला 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, बिकॉज ऑफ सम मॉडिफाइंग इनपुट हमारा फॉर्मूला 5 से मल्टीप्लाई होने लगा है. Okay, so what we can do is at the output, whatever value we are getting, we can divide it by 5 and then multiply it by 2. Okay, यानी कि कैलकुलेटेड करेक्शन कर लिया हमने, जो वैल्यू मॉडिफाइंग इनपुट या इंटरफियरिंग इनपुट की वजह से एक्स्ट्रा सिस्टम में ऐड हो गई थी, उसे आउटपुट पे जाके हमने वापस माइनस कर दिया. ठीक है, अगर हमें ये पता चल जाता है कि हमारी रिक्वायर्ड सिग्नल V था, ठीक है, कुछ एक सिग्नल V है और उसके अंदर एक +5 की डिस्टर्बेंस आ रही है, so what we can do is at the output whatever value of voltage you are getting, just subtract -5 from that, you will get the actual value. ठीक है, मॉडिफाइंग इनपुट के केस में जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि हमारा फॉर्मूला था जिसमें कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, मॉडिफाइंग इनपुट की वजह से वो 5 से मल्टीप्लाई होने लग गया. इफ वी नो दीज वैल्यूज क्वांटिटेटिवली, व्हाट वी कैन डू इज कि जो आउटपुट पे हमें वोल्टेज मिल रही है उसको हमने, वो 5 से मल्टीप्लाई होके मिल रही थी, हमने उसको 5 से डिवाइड करके, एक्चुअल में 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एट द आउटपुट, एंड दैट विल गिव मी द actual required output. So that is called calculated correction. When you know the exact value of interfering or the modifying input in terms of quantitative values, you can actually perform the same mathematics at the output in reverse manner to make the correction. अगर कुछ ऐड हो गया है सिस्टम में, आप आउटपुट पे जाके उसको माइनस कर दीजिए, you will get the actual output corrected value. Okay, so that is called calculated output correction. Then we have a method of filtering. Filtering can be at the input as well as output. How we can filter it? Let me show you. Now see, this is the first figure that you see. This is a thermocouple. Thermocouple क्या होता है? Thermocouple में हमारे पास दो different type के metallic wires होते हैं जिसको हम दो junctions पे join करते हैं, and when you keep these two junctions at different temperatures, there is some voltage being produced in this thermocouple. Okay, so now जो हमारा reference temperature है, reference junction है, we want to keep this at some constant temperature. ठीक है, हम इसको 0 डिग्री पे usually रखते हैं. So what we can do is, अगर हमें इसको किसी भी ambient temperature के variation से protect करना है, so what we can do is we can keep it under an insulated box. उससे क्या होगा, बाहर जो भी ambient temperature में changes हो रहे हैं वो इस जंक्शन को अफेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, सो दैट दिस इज एक्चुअली फिल्टरिंग. दिस इज कॉल्ड रेफरेंस फिल्टरिंग, कि जो आपका रेफरेंस पॉइंट था उसको आपका कोई भी एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट ना करे, तो हमने उसको एक थर्मल इंसुलेटेड बॉक्स के अंदर डाल दिया, सो दैट देयर इज नो चेंज इन माय रेफरेंस, 0 डिग्री रेफरेंस जो हम मेजर करना चाहते हैं. सो दिस इज कॉल्ड रेफरेंस फिल्टरिंग. इनपुट और आउटपुट फिल्टरिंग का मैं आपको एक ही एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे हमने स्ट्रेन गेज का एग्जांपल लिया था, दैट स्ट्रेन गेज इज अ पार्ट ऑफ एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज. ओके, एंड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है, एक वोल्टेज प्रोड्यूस करता है जब उसमें स्ट्रेन डेवलप होता है तो. लेकिन हमने देखा था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस पर्टिकुलर व्हीटस्टोन ब्रिज कैन पिक अप सम एक्सटर्नल EM वेव in terms of voltage, and it can give you some distorted voltage at the output. अब इस सिस्टम को करेक्ट करने के हमारे पास दो मेथड हैं. एक तरीका है इनपुट फिल्टरिंग. इनपुट फिल्टरिंग का मतलब है कि जहां पर आपने अपना सेंसर लगा रखा है उसको एक मैग्नेटिक शील्ड के अंदर रख दो, ताकि ये जो सेंसर है ये कहीं से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को पिक ही नहीं कर पाएगा if it is inside the shield. So obviously the output that you are going to get is obviously only because of this sensor, not because of any external EM wave or any external disturbance.
दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है कि हमें ये बात मालूम है दैट स्ट्रेन गेज इज एक्चुअली अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। जब एक्चुअली में फोर्स आप अप्लाई करते हो और स्ट्रेन मेजर करते हो, ये हमें फ्रॉम द थियोरेटिकल डेरिवेशन हमें ये मालूम है दैट स्ट्रेन गिव्स यू अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। और जब ये एक्सटर्नल ईएम वेव कहीं से पल्स को पकड़ता है, कहीं से ऑल्टरनेटिंग करंट को पकड़ लेगा, तो क्या करेगा, ये एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल उसके अंदर मिक्स कर देता है। सो व्हाट वी कैन डू इज व्हेन वी नो द नेचर ऑफ the interference as well as the original signal, we can design a filter। अब इस केस में आप देखोगे मैंने आउटपुट पर एक ऐसा फिल्टर लगा दिया जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को डिस्कार्ड करके उसके अंदर से लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मुझे निकाल के दे देगा, एंड आई नो दैट लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज माय स्ट्रेन सिग्नल। तो जब हमें इनपुट और आउटपुट का नेचर पता होता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो हम एक कॉरेस्पॉन्डिंग फिल्टर डिजाइन करके उसे आउटपुट पे लगा देते हैं सच दैट द डिस्टर्बेंस गेट्स एलिमिनेटेड एंड ओनली द रिक्वायर्ड सिग्नल इज फिल्टर्ड आउट एंड यू गेट दैट एट द आउटपुट। सो दिस काइंड ऑफ अ मेथड इज एक्चुअली कॉल्ड इनपुट एंड आउटपुट फिल्टरिंग। एक बार हमने क्या किया, इनपुट को एक ऐसे शील्ड में रख दिया सो दैट देयर इज नो इंटरफेरेंस अफेक्टिंग माय सेंसर। दूसरी तरफ मैंने क्या किया, इनपुट को शील्ड में नहीं रखा था, लेकिन आउटपुट पर मैंने एक ऐसा फिल्टर लगा दिया जो डिस्टरबेंस को डिस्कार्ड कर देगा और रिक्वायर्ड सिग्नल को उसमें से फिल्टर करके दे देता है मुझे। ऑफ कोर्स दिस यू कैन डू ओनली व्हेन यू नो द नेचर ऑफ डिस्टरबेंस एज वेल एज योर ओरिजिनल सिग्नल एंड देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दैट। इसमें हमें पता होता है कि जो नॉइज सिग्नल होता है वो यूजुअली इट्स अ वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज। सो अगर हम इसमें एक लो पास फिल्टर लगा देंगे तो वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को यहीं पर ब्लॉक कर देगा, और जो रिक्वायर्ड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जो एक्चुअली में स्ट्रेन गेज से आ रहा है वो उसको फिल्टर आउट करके हमें आउटपुट पर शो कर देता है। ओके, सो दैट इज एक्चुअली योर इनपुट एंड आउटपुट फिल्टरिंग। ओके, then you have a method of opposing inputs। opposing inputs का मतलब होता है कि अगर हमें पता है कि कहीं पर हमारे पास सेंसर के अंदर एक अनवांटेड फिनोमेना इंट्रोड्यूस हो रहा है, हम एक और डमी सेंसर इंट्रोड्यूस कर देते हैं या कोई एक ऐसा इनपुट इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो उस इफेक्ट को नलिफाई कर दे। जैसे अगर आप इस व्हीटस्टोन ब्रिज को देखो, हमारे पास एक स्ट्रेन गेज है यहाँ पर, जिसके एक्चुअली जो स्ट्रेस्ड स्ट्रेन गेज है, दिस इज माई सेंसर। इसको मैंने किसी एक स्पेसिमेन पर लगाया, उस पर फोर्स अप्लाई की, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू सम इम्बैलेंस। ठीक है, अब एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एम्बिएंट टेम्परेचर की वजह से इसकी रेजिस्टिविटी में कुछ चेंज आ गया। ठीक है, नाउ आई वांट टू नलिफाई दैट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आई वांट कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस ये शो कर रहा है वो सिर्फ फोर्स की वजह से हो, एम्बिएंट टेम्परेचर की वजह से नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपोजिट आर्म में एक और सेम मटेरियल का स्ट्रेन गेज लगा देती हूँ। अभी क्या होगा, जब टेम्परेचर में चेंज आएगा तो इन दोनों स्ट्रेन गेजेस में सेम इफेक्ट होगा बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, लेकिन एक स्ट्रेन गेज जो है उसमें फोर्स लगी हुई है और एक स्ट्रेन गेज में फोर्स नहीं लगी हुई है। जब आप इसको R1/R3 और R2/R4 करोगे तो जो टेम्परेचर का इफेक्ट था, क्योंकि वो दोनों स्ट्रेन गेजेस में है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा और इम्बैलेंस जो इसमें क्रिएट होगा वो सिर्फ फोर्स की वजह से होगा। ठीक है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इस पर्टिकुलर स्ट्रेन गेज की रेजिस्टिविटी दो फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रही है। एक, इस पे फोर्स लगाई हमने, दूसरा एम्बिएंट टेम्परेचर की वजह से चेंज हुई। अब एम्बिएंट टेम्परेचर की वजह से जो चेंज हो रहा है उसे हमें नलिफाई करना है। वी वांट दैट इसमें जो वोल्टेज डिफ्लेक्शन है वो सिर्फ फोर्स की वजह से होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपोजिट आर्म में सेम टाइप का एक और स्ट्रेन गेज लगा दिया। इसमें जो रेजिस्टिविटी चेंज आएगा वो सिर्फ टेम्परेचर की वजह से आएगा, इस पर हमने कोई फोर्स नहीं लगाई है। और जब आप फॉर्मूला लगाओगे R1/R3 is equal to R2/R4, because these two factors are getting divided, the effect of temperature will get cancelled out and the deflection will be only because of the force that you have applied on this particular strain gauge. This is called opposing input method। यानी आपने एक और ऐसा डमी लगा दिया जिसमें जो यहाँ पर हमारे पास अनवांटेड इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था, वही सेम अनवांटेड इफेक्ट दूसरे सेंसर में भी हो रहा है, लेकिन वो सिस्टम में
नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो वो जो वैल्यू चेंज आया होगा टेम्परेचर की वजह से वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड इट विल नलिफाई द इफेक्ट ऑफ temperature change. So this is a method or that is called opposing input. Okay, so this was about the methods. So I am going to